Good evening, students. This is in continuation with MSE-31 Part 1. One video I've already created, that is of almost half an hour. After that, this is in continuation with Part 1. Okay, so whatever we have taught over here, penetration testing, and how Python is used, why Python is used, we are not going to discuss all those things over here. Okay, so please go through that lecture. Okay, after that you should come over here because over here we're going to discuss something in details. Scapy, how Scapy is used, what is Python IDE, all these things we're going to discuss over here in detail. But this is not the whole syllabus. One more video will come as part 3, but that I won't be covering. That you have to do it on your own. Block 4 you have to cover it on your own. Block 4. Few topics I've covered in part 1 also, but block 4 you please look into it. Whatever I have not covered, you please go through it. Okay. So this covers all block 1, block 2, block 3, whatever I have left in MSE 31 part 1, I have covered all those topics over here. Okay, so let's start. So whenever we talk about data science or website development or artificial intelligence machine learning, only one thing comes in mind, and that is Python. R is not there. R is different thing. Okay, that is a statistical tool, but Python can be used everywhere. Okay, in website development, artificial machine learning, and any other domain, everywhere Python is used. Now, when I'm going to do Python programming, so we need an interpreter, okay? Or we can say it is a integrated development environment, IDE, Python IDE, okay? So different IDEs have different purposes, okay? So yeah, it's not that means different organizations have created different IDs and the function is same. Function is never the same, okay? According to your purpose, so you can use those IDs. Hope I'm clear. Okay, so let me go through it. A Python integrated development provides all the essential tools needed for software development with Python. Okay, it helps to automate the task and enhance the productivity and efficiency of the developer. A Python IDE primarily consists of code editor, a compiler, automation tools, debugging tools, and much more. And okay, so whatever. So what happens? So it's, one is PyCharm is there, then one Google Colab is there. Suppose yeah, you're doing basic Python programs, okay? So you can use Google Colab also. You do not have to install anything. Go through Google Colab, you can do. Suppose you don't have proper RAM or CPU and you need a GPU, processing for some program. So you can use in Google Colab GPU. Okay, so what you have to do means in somewhere in remote area, in remote place somewhere that you have to use that GPU and the audio system would think that the whole hardware is on GPU. You can say, okay, means the system is working on GPU, but actually the GPU is not present over here. It is somewhere else. Okay. The last time we have discussed about one topic. What is that? Virtual environment. Virtually, we think virtually it is somewhere else, but the system will think that it is present it is present within. Okay, so that we can use GPU that is used in gaming laptops, you can say. So for that we use that Google Colab. So but that is for only basic purposes, basic small things. Okay, but we cannot do everything in Google Colab, I'm telling you. Okay, so few things are there, few IDs I'm discussing over here. So many are there, but I'm going to discuss few. Okay, one is PyCharm. PyCharm. It is a very important IDE. Okay, yeah, it has frameworks like Django, Flask, etc. What is Django? Suppose आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो वेबसाइट के सामने का फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा वो सारी चीजें वो Django या फ्लास्क में हो जाते हैं ठीक है तो it is developed by JetBrains and is a customizable and cross-platform IDE that offers numerous prominent features such as intelligent code editor. Okay, for smart code completion, automatically the code will be completed. Means you write one word, the rest of the codes will be in front of you. And if you want to edit, that is a different thing. Okay, so PyCharm is very important in that case. It supports JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, HTML, CSS, everything it supports. So PyCharm is very important, I'm telling you. One is PyDev. PyDev, it is written in Java. Okay, the PyDev is developed by Java and enables Eclipse to act as an integrated development environment for Python environment for Python development. PyDev offers you several other advanced features like Python development using PyLint. PyLint वहाँ पे use नहीं होगा हमारा
पाइचाम में यूज नहीं होगा, वो सारे यहाँ पे होंगे। जैंगो इंटीग्रेशन, टाइप हिंटिंग, ये टोकन ब्राउजर, कोड कवरेज, या यूनिट टेस्ट इंटीग्रेशन एंड मिनिमम टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। तो पाई दे के आपको फीचर्स दिख रहे, या पाइथन के फीचर्स दिख रहे, मैंने क्या हो रहा है, जिसको जैसे काम करना वो उसी तरह का आईडी लेंगे, सिंपल बात। वन इज आईडी स्पाइडर, स्पाइडर ऑटोमेटिकली कम्स विथ एनाकोंडा पैकेज, ठीक है, एनाकोंडा पैकेज में ही स्पाइडर होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इट इज अ very important thing, and it has the advanced features, and it supports scientific Python libraries like NumPy, numerical Python, NumPy, yeah, numerical Python, SciPy मतलब scientific Python, Matplotlib for graphs, SymPy, etc. That somehow signifies that is primarily developed for data scientists. ये जो सारी चीजें हैं ये डेटा साइंटिस्ट के लिए होते हैं, and engineer scientist offers your robust scientific environment for Python development, ठीक है। So for that Spider we are using Spider. It is a free and open source IDE. It is a free and open source IDE for Python, provided with some remarkable features like advanced analysis, debugging, profiling functionality, deep inspection, and many others. One is Thorny. Thorny lightweight. जैसे आप नए नए शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप Thorny से कर लो, उसमें उतना ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे। इट इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स, ओके। इसमें क्या होगा, it allows the developers to check how the code and the shell commands affect the Python variables and provide a simple debugger for debugging as well. एकदम बेसिक, मतलब पाइथन कैसे अंदर में काम कर रहा है, जैसे आपने कोई कोड लिखा, कैसे क्या करे, एक एक लाइन, वो एवरीथिंग इट इज डन ओवर हियर। तो थॉनी सिर्फ जब 11 12 का बच्चे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इजी टू लर्न, compatible with Windows, macOS and Linux, supports for C, Python and MicroPython, steps through expression evaluation, एक एक करके इवेलुएट करेगा, मोड फॉर एक्सप्लेनिंग रेफरेंसेस, ठीक है। ये सारे आपने पढ़ लिए। ये यदि आपको आईडी के बारे में पूछेंगे, 3 4 आपने मैंने बताए, वही सारे आप लोग को डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी हम लोग तो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग पाइथन की बात ही नहीं कर रहे। तो क्या होता है, मेनी साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स यूज क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस लाइक डेटा एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड secret key encryption. Python cryptographic library can do all these tasks using loaded with cryptographic algorithms. Cryptographic algorithms हमने पहले पढ़ा है पार्ट 1 में, DES, AES, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग तो वो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। आप डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट की और पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होता है, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इनसे सिंगल की से ही होंगे क्रिप्टोग्राफी, और पब्लिक की को बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ओके। तो व्हाट इज प्राइवेट की, प्राइवेट की इज बोथ फॉर बोथ यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा। एनक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन, दिस की इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों सेम की यूज करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक, ओके। For sensitive information, the private key is also called symmetric because it is shared by both parties, दोनों पार्टी शेयर होगा। एसिमेट्री में क्या होता है, पब्लिक की से हम एनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं, दो की यूज होते हैं। A private key is generally a lengthy, non-guessable sequence of bits created randomly or pseudo-randomly, ठीक है। The complexity and length of the private key defines how easy it is for an attacker to carry out the brute force attack। हाँ, ठीक है। द लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलेगा कैसे वो अटैक करेगा अटैकर, ठीक है। अब पब्लिक की, asymmetric key code also known as public key code is a type of encryption that employs pairs of keys, दो की होंगे, एक होता है public key known to everybody and private key which is known to the owner only। Cryptographic techniques based on mathematical problems, one-way functions are used to generate such key pairs। क्या होता है, प्राइवेट की शुड बी केप्ट सीक्रेट, वो सीक्रेट होता है, पब्लिक की सबके पास होता है। जैसे ईमेल आईडी, मेरे ईमेल आईडी आप लोग सबको पता है, yeah, you can send me mail also, but when I am going to open that mail, so I use a what I use, why I use a password that is not known to you or anybody। तो ये आप बोल सकते हो that is asymmetric की cryptography। In such a system, anybody can encrypt a message using the intended receiver's public key, but only the receiver's private key can decode the message, जैसे मैंने आपको बोला। This allows a server application to produce a cryptographic key for compatible symmetric key cryptography, then encrypt that freshly generated symmetric key using the client's freely disclosed public key। आप दोनों का डिफरेंस भी पूछते हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की डिफरेंस पेपर में आ सकते हैं। ये आपकी कल 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर आएंगे पॉसिबली। एल्गोरिदम, प्राइवेट की क्या होता है, प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर बोथ एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द sensitive data, it is shared between the sender and the receiver।
ओके, पब्लिक की क्या होता है, इज यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनक्रिप्टिंग द डेटा। परफॉर्मेंस क्या था, प्राइवेट की mechanism is faster, public key mechanism is slower. Secrecy, the private key is separate and not publicly to anyone, public to anyone apart from the sender and the receiver, ठीक है। और public key क्या होता है, is free to use, anybody can use, and private key is kept secret. The private key mechanism is called symmetric, public key mechanism is called asymmetric, ये दोनों याद रखो। शेयरिंग, द प्राइवेट की टू शेयर बिटवीन टू पार्टीज, यहाँ पे क्या होता है, कोई शेयरिंग नहीं होता, पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। टारगेट, यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेक्स द रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड द स्पीड ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे लोड टेस्टिंग चेक्स द सस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। दोनों का टेस्टिंग अलग है, यहाँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूज होगा, यहाँ पे लोड टेस्टिंग यूज होगा। अब हमारा पाइथन को यूज करके हम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे उसमें हम डायरेक्टरीज बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन क्रिएट डायरेक्टरीज, ठीक है, वी कैन डिलीट डायरेक्टरी, वी कैन क्रिएट पाइथन, वी कैन सी लुक एट द पाइथन, किसने लॉग इन किया, हमारा पाइथन का वर्जन क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी कैन मैनेज थ्रू सिंपल कमांड्स ऑफ पाइथन, ओके, and I can manage the whole operating system with this. This is also very important, very important. Python is one of the most popular and frequent used language of recent times. While working with a lot of projects, especially when I tried to automate one task or another, I felt such urge that I can talk to the operating system directly from Jupyter Notebook. Jupyter हम बात कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली, तो उसको करने के लिए हमें कुछ बात करना पड़ेगा, कुछ कीज है। इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। इंपोर्ट ओएस मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट हो गए इनटू इनटू द पाइथन, और इंपोर्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी हो गया। ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस कम्स अंडर पाइथन स्टैंडर्ड यूटिलिटी मॉड्यूल्स। It has to interact with the OS directly from within the Jupyter Notebook. Jupyter Notebook भी एक Python ID, उसके थ्रू से भी हम कर सकते हैं, किसी के साथ भी थ्रू भी कर सकते हैं। हम लोग जुपिटर से किए तो हम जुपिटर के बार बार बात कर रहे हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट ओएस करेंगे, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म करेंगे, तो ओएस से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब हमने इंपोर्ट ओएस कर लिया। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इनबिल्ट मॉड्यूल प्लेटफॉर्म दैट फेचेस सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम विंडोज 10 है, 11 है, आपका आपका सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से चल रहे हैं, ये सारे चीजें ये प्लेटफॉर्म बताएंगे। The platform module retrieves information regarding the system which you are currently working. Okay, ये देखो OS version of the OS node and more. This module is will be particularly used to check the compatibility of the system with the Python version. Compatibility check करने के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ओके। एंड टेल मी अबाउट माई, अब जैसे प्लेटफॉर्म डॉट यू नेम लिखे, तो क्या प्लेटफॉर्म डॉट यू नेम जैसे लिखे, यूजर नेम, ओके, तो क्या होगा, वो सारे चीजें दे देंगे, वर्जन क्या है, मशीन कौन सी है, और सिस्टम विंडोज है, जावा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें वो वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। नो रिटर्न द कंप्यूटर नेटवर्क नेम, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क नेम, ठीक है, कौन सा नेटवर्क में काम करे वो भी बता देंगे। रिलीज, विंडोज का कौन सा है, 10 है, विंडोज 11 है, ये भी बता देंगे। वर्जन, रिलीज वर्जन कब रिलीज हुआ तो वो भी बता देंगे। मशीन, मशीन विंडोज 10 है, एएमडी है, क्या है वो भी बता देंगे। प्रोसेसर, कौन सी प्रोसेसर में राम इंटेल i5 में कर रहा है, एएमडी में कर रहा है, ये सारी चीजें ये बता देंगे। तो प्लेटफॉर्म इज सच इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ लेंगे। अब पाइथन का वर्जन नेम क्या है, वर्जन क्या है, तो प्लेटफॉर्म डॉट पाइथन वर्जन, ये जैसे लिखोगे क्या होगा, पाइथन पाइथन का वर्जन बता देगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, ओके। कौन सी पाइथन में आप काम कर रहे हो, 3.7 में कर रहे हो, 3.0 में कर रहे हो, 2.0, एवरीथिंग विल गेट ओवर देयर। उसके बाद आप जब काम कर रहे हो तो कोई तो वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, कोई भी डायरेक्टरी में कर रहे हो, तो उसको कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसको देखने के लिए हमें ये कमांड यूज करना पड़ेगा, os.get करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वो जैसे ही करोगे तो कौन सी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। द आउटपुट above is your current working directory. If you for some reason do not know to work in this directory, don't worry. It's not that you are stuck. We can change the directory also, ठीक है। अभी जो डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वो दिखने के लिए ये है। इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्टरी, पाथ देके हम डायरेक्टरी को भी चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी, os डॉट चेंज डायरेक्टरी पाथ। अब मैंने बोला था ना, पाथ देके आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, ये वाला है कमांड। आप थोड़ा ढंग बड़े बड़े करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये है कमांड। सी यूजर्स, उसके बाद कोई बंदे का नाम है, सपोज पाइथन का कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ब्लॉग्स, उसके अंदर में ये वाला है, यहाँ पे काम करना है,
तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो पाथ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या डिस्प्ले करेंगे, ये वाला डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप किसने लॉग इन किया था, ठीक है, तो वो यदि जानना है तो क्या होगा, ओएस डॉट गेट लॉग इन करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिस बंदे ने लॉग इन किया वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले कर देंगे। तो देखो हम क्या करें, हम पाइथन के एनवायरनमेंट बैठ के वी आर इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं टोटली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप व्हाट्स देयर इन माय डायरेक्टरी, ये एक्चुअली आपने डॉस पढ़ा, डॉस कमांड की तरह ही है ये चीज। व्हाट्स देयर इन माय डायरेक्टरी, ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें दिख जाएंगे। पीएनजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, डॉक फाइल है, जो भी है वो सारे डिस्प्ले करेगा ये लिस्ट डायरेक्टरी। ठीक है, हाँ अब क्या है, रनिंग द अबव कोड विदाउट एनी पाथ स्पेसिफाइज रिटर्न्स द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट वर्क। यदि कोई पाथ नहीं दोगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी रहेगा वो सारा डिस्प्ले कर देगा। यू कैन एक्सेस एनी डायरेक्टरी कंटेंट बाय सिंपली गिविंग द पाथ, पाथ दे दोगे तो फिर उसके भी दिखा देंगे, सबको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया, दिस वन इज द पाथ, तो उस जिस पाथ में दिए उस पाथ का सारी बातें बता देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। आप हाउ टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओएस डॉट एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी, इससे हम क्या करें, न्यू डायरेक्टरी बना सकते हैं। ओएस डॉट मेक डायरेक्टरी, और मेक डायरेक्टरी किस जगह में करना है, तो उसके लिए ये पाथ दे दिया मैंने, पाथ तो देना ही पड़ेगा। आप मल्टीपल डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, एक डायरेक्टरी है तो डी आई आर एस कर दो, तो मल्टीपल डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं। सारे कमांड आप लोग को याद रखना है, छोटे छोटे है। और डिलीट फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, ओएस डॉट रिमूव फंक्शन, तो क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पाथ आप यहाँ पे ब्रैकेट में पाथ दोगे तो पाथ से वो फाइल डिलीट हो जाएगा। हाउ टू डिलीट द फोल्डर, तो डिलीट फोल्डर को डिलीट करने के लिए ओएस डॉट आर एम डी है। ठीक है, अब क्या होगा, रिमूव डायरेक्टरी जब करोगे तो अंदर का फाइल्स पहले डिलीट करोगे, उसके बाद ही डायरेक्टरी रिमूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या होगा, दिस काइंड ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा, हमें पहले फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डायरेक्टरी डिलीट होंगे। आप मल्टीपल फोल्डर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ओएस डॉट रिमूव डी आई आर एस, डी आई आर एस कर दोगे और नेम दे दोगे तो क्या मल्टीपल फोल्डर्स डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आई कैन रीनेम ए फाइल और फोल्डर ऑल्सो, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओएस डॉट रीनेम ओल्ड न्यू, ओल्ड फाइल नेम दोगे, न्यू फाइल नेम दोगे, और उस तरह का फाइल नेम यदि एग्जिस्ट होंगे तो फिर क्या होगा, इट विल थ्रो एरर, एरर मैसेज आ जाएगा, ओएस एरर आ जाएगा। ओके, अब हमने इतना तो क्लियर हो गया, ये जो सारी चीजें मैंने बताई ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम लोग को पार्ट वन मस्त देखोगे, ठीक है, पार्ट वन में जो भी हमने डिस्कस किया वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया था वो इस आई थिंक MSc 29 में, वो सारे एक बार फिर आप लोग देख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सिंपल, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सॉकेट्स की बात करेंगे। सॉकेट है क्या, ए सॉकेट इज वन एंड पॉइंट ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। ठीक है, टू एंड पॉइंट्स या टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, तो टू एंड पॉइंट्स रनिंग ऑन द सेंडर एक रिसीवर, दोनों के बीच में जो है, तो दैट इज सॉकेट। द सॉकेट mechanism provides a means of inter-process communication (IPC) by establishing named contact points between which the communication takes place. A और B के बीच में जो भी होंगे वो सारे सॉकेट से होंगे। Like pipe is used to create pipes, sockets is used to create is created using socket system network. A socket connected to the network is created at each end of the communication. दोनों एंड में होंगे, A और B यदि है तो A में भी सॉकेट होगा, B में भी सॉकेट, दोनों जगह क्रिएट करना पड़ेगा। Each socket has a specific address. This address is composed of an IP address and a port number. IP address और port number भी देना पड़ेगा। अब sockets are generally employed in client server application. ठीक है, client server application में यूज होते हैं। ठीक है, the server creates a socket, attaches it to a network port address, then waits for the client to contact it. ठीक है, the client creates a socket and then attempts to connect to the server socket. When the connection is established, transfer of data takes place. ये important है, ये बातें याद रखो। एक क्लाइंट ने भी किया, सर्वर ने भी किया, वो कर एक क्लाइंट ने करके सर्वर करके बैठे हुए, क्लाइंट भी अपना किए, फिर दोनों क्या हो, कनेक्ट होंगे एंड देन डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब व्हाट इज सॉकेट एड्रेस, सॉकेट एड्रेस क्या है, 14 बाइट एड्रेस है, ये 14 बाइट व्हिच आर रिजर्व्ड टू होल्ड द एड्रेस इटसेल्फ। ठीक है, अब ये सॉकेट प्रोग्रामिंग के, ये
सर्वर में क्या होता है, सॉकेट फंक्शन होता है, बाइंड फंक्शन होता है, लिसन होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट। क्लाइंट क्या करता है, सॉकेट बना के क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद रिसीव करके उसके बाद सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद इधर सेंड करने के बाद और सर्वर भी क्लोज हो जाता है, और रिसीव करने के बाद क्लाइंट भी क्लोज हो जाता है। ये थोड़ा सिंपली आप देख लेना इसको, सॉकेट प्रोग्रामिंग की। ये डायग्राम डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आप लोगों को पता ही है। पहले क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे एक सॉकेट एक सॉकेट बनेगा, यहाँ पे भी एक सॉकेट, दोनों ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। तो दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, हमने पहले भी पढ़ा होगा। A client is one who requests a service, while a server is one who provides the service. ये बात याद रखो। Client server architecture is a computing approach in which the server hosts, manages, and delivers host of the client resources and services. Because all requests and services are delivered across the network, it is known as the networking computing model or client server network. Okay, other systems are connected across the network, and the resources are shared among the various computers under the client server architecture or model. तो दिस इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये सब बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ समझने की है नहीं, ये तो सब पता ही है आप लोग को। तो लेकिन आप लोग पढ़ के जाओगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज टिपिकली सेटअप सो दैट clients are located at workstations or personal computers and servers are located elsewhere, computer usually और मोर पावरफुल मशीन्स। तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट एक जगह बैठा हुआ, सर्वर कहीं और है, ठीक है। तो दोनों को कम्युनिकेशन, टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन दे, हम क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। आप सॉकेट प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अब पाइथन में कैसे, थोड़ा बहुत मैंने सॉकेट प्रोग्रामिंग का लॉजिक्स हम लोग यूज किए, ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत ही किया, आप लोग एग्जाम्पल दे से देखे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सॉकेट प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक फॉर अलाउिंग टू नेटवर्क नोड्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, टू नेटवर्क नोड्स टू कम्युनिकेट, वन सॉकेट लिसन्स ऑन a specific port at an IP address while the other establishes a connection with it. While the client connects to the server creates the listener socket. सर्वर क्या करता है, सुनता है, देखते रहता है, सुनते रहता है, जो व्हाट द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर। आप सॉकेट को क्रिएट करने के लिए क्या है, एस इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट फैमिली, सॉकेट टाइप, प्रोटोकॉल इक्वल टू 0। ओके, आप सॉकेट फैमिली में क्या होता है, यूनिक्स हो सकते हैं, या यूनिक्स हो सकता है, या आईनेट हो सकता है। प्रोटोकॉल इज लेफ्ट आउट, डिफॉल्टिंग टू 0। प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो क्रिएट कैसे सॉकेट करते हैं, ये वाला चीज आपको रखो, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए सॉकेट। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। एनटीए स्टैंड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, एनटीए, एंड इज ए टूल फॉर डिटेक्टिंग नेटवर्क अवेलेबिलिटी एंड एक्टिविटी एनोमलीज। ठीक है, वो क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, क्या काम चल रहा है, क्या नेटवर्क अवेलेबिलिटी, और उसके बाद कोई यदि अटैकर अटैक कर रहा है, एक्टिविटी एनोमलीज सच एज सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन डिफिकल्टी, ये सारे नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस चेक करते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनटीए। क्या क्या एप्लीकेशन है, कीपिंग रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर नेटवर्क, ये सारे चेक करना। डिटेक्टिंग रैंसमवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ मैलवेयर, कोई कोई यदि मैलवेयर है। सेइंग वल्नरेबल साइफर्स एंड प्रोटोकॉल्स, ये सारे एनटीए चेक करते हैं। फिक्सिंग ए पुअर इंटरनेट कनेक्शन, पुअर इंटरनेट कनेक्शन को तो वो भी एनटीए ये कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसको ठीक भी करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। As we develop a system that can monitor network traffic in real time, in that instance, improving network performance, lowering your attack surface, increasing security, and better managing your resources will be beneficial. Obviously, improve network performance increase करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, lowering your attack surface, ठीक है, increasing security, ये सारे तो important है ही। However, understanding how to monitor traffic is inadequate, उतना easy नहीं है। Data sources from a network monitoring tool are also vital to the flow data from devices such as routers, packet data are two of the most प्रिवेलेंट नेटवर्क टैप्स। ठीक है, ये दोनों या नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस में यूज होता है। तो स्पैन, मिरर पोर्ट्स, नेटवर्क टैप्स, ये सारी चीजें, नेटवर्क टैपिंग, नेटवर्क को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब पीस केपी और केपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इट इज अ लाइब्रेरी। ओके, is interface with the PSKP. The library packet capture library is interface with PSKP, a Python extension module. PSKP करता क्या है? It is used to capture network packets.
It is used to capture network packet. Capture PSKP is a handy Python class for packet generation. Is a handy Python class for packet generation and handling when used in combination with other class Python classes. क्या होता है? It is used for to capture Python packets. अब इसके लिए दो कमांड यहाँ पे डाला हुआ है. हमको क्या करना है? उसको इंस्टॉल भी करना है तो यू कैन इंस्टॉल पाइथन पीसकेपी बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स. क्या होते हैं? sudo apt get update, sudo apt get install python skp. ये दोनों अपडेट करोगे उसके बाद इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली गेट इंस्टॉल्स. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कमांड आपको याद रखना है. अब क्या करते हैं? स्केपी. स्केपी क्या है? स्केपी इज ए पैकेट मैनिपुलेशन मॉड्यूल दैट वर्क्स विद वेरियस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. ये क्या है? पैकेट मैनिपुलेशन. पैकेट का मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं पैकेट के अंदर. इट एनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड चेंज मेनी सॉर्ट्स ऑफ नेटवर्क पैकेट्स एज वेल एज पैसिवली कैप्चर एंड स्निप पैकेट्स एंड एक्ट ऑन देम. हम लोग पैकेट के अंदर भी जा सकते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर क्या करना है वो भी हम कर सकते हैं स्केपी के थ्रू से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Scapy is a piece of software specializing in a network packet and frame manipulation. It can be used either interactively with the CLI command line interpreter or a Python application library. We can use Scapy to send, sniff, decode and forge network packets. ये सारे चीजें कर सकते हैं हम Scapy में. This capability enables the development of network probes, scans, and attack tools. Scapy is an interactive packet manipulation tool that can spoof or decode packets from many protocols. जो हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स किया हम वो प्रोटोकॉल्स भी यूज कर सकते हैं. सेंड देम ओवर द नेटवर्क, कलेक्ट देम एंड डू अदर थिंग्स. कुछ भी कर सकते हैं हम. ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे. एडवांटेजेस क्या है? मल्टीपल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर सपोर्टेड. जितना हमने पढ़े थे हम लोग एक बार फिर आप लोग को MSE-29 पढ़ो. ठीक है, तो उसमें नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा एक बार देख लेना. नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है. Scapy's API include classes for capturing packets across a network segment and running a function each time one is allocated. It can be used programmable from Python scripts or in command interpreter mode. ठीक है, ये कैप्चर करता है पैकेट को, कैप्चर करके हम उसमें चेक करते हैं क्या है क्या नहीं. वो सारी स्निफिंग भी कर सकते हैं. वी कैन मॉडिफाई द नेटवर्क ट्रैफिक एट एन एलिमेंट्री लेवल विद इट. एलिमेंट्री माने स्टार्टिंग में हम कुछ कर सकते हैं जो भी करना है, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते. इट अलाउज टू मिक्स एंड मैच प्रोटोकॉल स्टैक्स. हम मिक्स भी कर सकते हैं प्रोटोकॉल स्टैक्स को और मैच भी कर सकते हैं. इट अलाउज जेड कस्टमाइजेबल ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल्स पैरामीटर. हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं प्रोटोकॉल का जो पैरामीटर उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं. स्केपी इज सच ए पावरफुल थिंग. However, it is not without faults and cannot be used to simultaneously process large number of packets. ज्यादा पैकेट्स नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पैकेट की हम कर सकते हैं. और कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल का सपोर्ट नहीं करता स्केपी. ओके, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू. कमांड्स इन स्केपी क्या क्या है? एलएस है, एलएस लिस्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय स्केपी. एलएस क्या है? लिस्ट ऑफ फंक्शन सपोर्टेड बाय स्केपी. कमांड्स एंड फंक्शंस हो जाएंगे. configuration related functions. So function release the details of the specific packet. For example, my packet dot so. ऑटोमेटिकली क्या होगा? उस पैकेट के बारे में सारे डिटेल्स दे देंगे. अब क्या करना पड़ेगा? द इंटरेक्टिव स्टाइल ऑफ स्केपी इज लॉन्च्ड इन अ टर्मिनल सेशन. कैसे करेंगे? ये ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं स्केपी को. डॉलर sudo स्केपी. उसके बाद एलएस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जैसे ARP, IP, IPv6, DCP, UDP, ICMP, वो सारे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे. एक बार पहले इंस्टॉल करना है उसको, स्टार्ट करना है स्केपी को. उसके बाद आप ये कमांड पास करना है तो ऑटोमेटिकली इट विल शो ऑल दीज थिंग्स. द फॉलोइंग कमांड इज टू प्रिंट द लेयर फील्ड्स. ls लेयर वेयर द लेयर इज दिस. जैसे IPv6 इसके बारे में हम सारी बातें चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में सारी बातें बता रहे हैं. ओके, तो वही है. तो जैसे कर रहे हो ऐसे करे करो. और फिर आप लोग के पास तो नोट्स भी है, रवि ने कुछ नोट्स बनाए वो भी थोड़ा पढ़ लो. दैट इज ऑल्सो गुड. ओके, लेकिन गो थ्रू द वीडियो तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए. आप स्केपी लेयर्स. इन स्केपी ए लेयर यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ प्रोटोकॉल. A layer usually represents a protocol. Simple. Escape a packet escape is a piece of information. Prepared piece of information होता है. ठीक है. To be dispatched to the network. हाँ, नेटवर्क में जाएंगे वो जो पैकेट होंगे. Packets must observe a logical signature in step with the sort of conversation you need to simulate. ठीक है. If you need to ship a TCP/IP packet, you must observe the protocol regulations described by TCP/IP standard. हाँ, TCP/IP पैकेट भेजोगे तो उसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएंगे.
IP layer is set at the destination spot IP of 127.0.0.1 by default device where KP is executing. जहां SP execute होगा वो हो जाएगा destination port spot IP. अब मॉनिटरिंग नेटवर्क यूसेज उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? pip install ps utility util skp pandas. तो क्या होगा उसमें? क्या होगा, हम मॉनिटर भी कर सकते हैं जे हम नेटवर्क यूसेज कितना नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, वो सारे नेटवर्क हार्डवेयर सब कुछ बता देंगे वो। ठीक है, कौन सा कनेक्शन क्या है, सब एवरीथिंग विल बी डिस्प्ले ओवर हियर। ये वाला जो फंक्शन आप पास कर दोगे, दिस फंक्शन, दिस कमांड यू कैन से, सॉरी फंक्शन नहीं कमांड। अब पैकेट स्निफिंग विद पाइथन, तो क्या होगा, पैकेट जब स्निफ करोगे तो क्या क्या चीजें आएंगी, ये सब इंफॉर्मेशन मिलेंगे। चैट सेशन, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल डीएनएस, वेब ट्रैफिक, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, एफटीपी और टेलनेट पासवर्ड्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। दिस थिंग्स कैन बी फाउंड आउट। अब स्निफिंग क्या होता है? स्निफिंग मतलब क्या होता है? सूंघना, एनालाइज करना चुपचाप तक किसी को पता ना चले। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव एक्टिव। पैसिव में क्या होता है? चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे बाद में अटैक करेंगे। एक्टिव क्या होता है? जैसे मैन इन द मिडल अटैक हमने बताया था, तो वो हो गया एक्टिव अटैक। द पैसिव स्निफिंग कैन ओनली बी यूज फॉर लिसनिंग। पैसिव स्निफिंग क्या होता है? ओनली फॉर लिसनिंग, सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ नहीं करते। डिवाइस कनेक्टेड टू हब्स कैन यूज इट। जहां हब्स होते थे तभी ये हब्स में ज्यादा यूज होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हब्स खत्म हो चुके हैं, अब स्विचेस ही यूज होते हैं। तो थोड़ा सा ये हमारे जो पैसिव स्पीकिंग है थोड़ा कम हो गए। देखो, hubs are nearly vanished. The switches as a result, passive sniffing is ineffective. अब इफेक्टिव नहीं है। Inactive sniffing, that traffic is locked and at vast and may also be manipulated. Manipulation हो जाता है बीच में, जैसे man in the middle, in some way as specified by the attack. Okay? A switch-based network is sniffed using active sniffing. Switch-based के लिए active और hub-based के लिए क्या होता था? Passive. Address resolution protocol ARP from a target network were flooded into the switch content address table. Flood किया जाता है कहाँ पे? Into the switches CAM table, content addressable memory. CAM keeps track of which host is connected to which port. CAM सब कुछ रखता था, कौन सा होस्ट किसके साथ कौन सा पोर्ट से कनेक्टेड है, सब कुछ उसके पास होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड गो थ्रू इट। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोगों का जो कमिंग सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें हम आई बी डूइंग द प्रोजेक्ट ऑल्सो। प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, क्या करना है, थोड़ा मैं हेल्प भी कर दूंगा उसमें आप लोग को, तो प्लीज बी देयर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कैसे, आपका फाइनल प्रोजेक्ट में आई विल बी हेल्पिंग यू। ओके, कैसे बनाना है, एंड स्टिल इफ यू कांट डू तो फिर हम देख लेंगे, अब जैसे करना है आप लोग प्रोजेक्ट का कर लेंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट द प्रोजेक्ट ऑल्सो, विल बी डूइंग द प्रोजेक्ट। ओके। अब सिक्योरिटी इफेक्ट्स ऑन प्रोटोकॉल्स, आप प्रोटोकॉल में कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स तो हमने पढ़े, एच टी टी पी, एन एन टी पी, पॉप, एस एम टी पी, एफ टी पी, आई मैप, टेलनेट, ये सारे एक बार आप लोग पढ़ लेना, वहां से बार बार मैं बोल रहा हूँ, पढ़ना जरूरी है। तो वो थोड़ा सा देख के फिर आप ये करना। आप जैसे एच टी टी पी, इट ट्रांसफर्स डेटा इन प्लेन टेक्स्ट विदाउट एनक्रिप्शन, कोई एनक्रिप्शन नहीं होता, तो क्या हो गया, इट रियल टारगेट हो जाएंगे, जब सामने दिखेंगे तो फिर तो करेंगे, अटैक कर ही सकते हैं। NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रैफिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, it is employed in all forms of communication. Data including passwords is sent over the network is clear text, in clear text, वो भी एक डिसएडवांटेज है, सब कुछ दिखेंगे खुल के। पॉप, पॉप क्या होता है? दिस इज फॉर रिसीविंग सर्वर ईमेल्स, बिकॉज इट कैन बी कॉट, दिस प्रोटोकॉल डज नॉट कंटेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्निफिंग। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये सारे क्या हो गए, सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं इसमें, अटैक करते हैं सारे। SMTP, यूटिलाइज टू ट्रांसफर ईमेल, दिस प्रोटोकॉल इफेक्टिव ऑल्दो इट लैक्स एंटी स्निफिंग फीचर्स, कोई फीचर नहीं इसमें भी। FTP, all information in plain text which can easily be sniffed। उसके बाद IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP इज सिमिलर टू SMTP इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, हाउएवर इट एक्सेप्शनली प्रोन टू स्निफिंग, ये भी होते हैं सारे में स्निफिंग की सारे जो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल है सब में स्निफिंग का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टेलनेट, तो टेलनेट क्या होता है? टेलनेट से सेंड्स एवरीथिंग, यूजर नेम, पासवर्ड्स, की स्ट्रोक्स in clear text over the network, making it easy to sniff। okay, तो all these things आप लोग को करना है। ठीक है, और
आप लोग को जब फोर्थ सेमेस्टर होंगे उसमें जो पेपर्स होंगे, पेपर्स के भी आप क्या करेंगे, विल बी क्रिएटिंग वीडियोस लेक्चर्स, ठीक है। तो एंड विल गो लाइव इन द नेक्स्ट सेशन, और वो सारे आपको डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे, और प्रोजेक्ट के भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय लास्ट लेक्चर ऑन दिस थर्ड सेमेस्टर, ओके, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आप लोग थोड़ा अच्छे से एग्जाम दो, और इफ यू लाइक द लेक्चर तो गिव इट अ लाइक, एंड कुछ भी यदि आपको पूछना होगा तो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और आपके जो फ्रेंड्स है, जो भी जिसको पता नहीं है इस ये सारे लेक्चर्स के बारे में, ये इस यूट्यूब चैनल के बारे में, क्यों, बिकॉज दिस इज योर यूट्यूब चैनल, आपको पता है जो इग्नू से कितने आपको हेल्प मिलते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि दोज आर ऑल काउंसलिंग सेशंस, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर क्लासरूम सेशन, ओके, व्हाट आई एम गोइंग, ऑल इज फ्री। तो क्या होगा, सबको, एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सेस ऑल दिस थिंग्स, तो हेल्प देम ऑल्सो टू डू दैट, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा भी ये हो जाएगा जब मैं लोगों का काम आ रहा हूँ, तो प्लीज हेल्प देम, एंड डू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर।